یہ کہانی صرف ایک کھوئے ہوئے محل کی نہیں بلکہ ایک ایسے ولی کامل کی ہے جس کی ذات آج بھی لاکھوں دلوں میں عقیدت و احترام کے ساتھ زندہ ہے۔ بابا شاہ جمال ایک ایسا نام جو صدیوں سے صوفیانہ اسرار، روحانی کرامات اور معرفت کے اسرار میں لپٹا ہوا ہے۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو درویشی، فقر اور اللہ کے عشق کی روشنی میں جگمگاتا ہے، لیکن ان کی ذات سے جڑا ایک ایسا پراسرار پہلو بھی ہے جس پر وقت کی گرد چڑھ چکی ہے۔ ایک ایسا راز جو صدیوں سے زبان زد عام تو ہے مگر اس کی حقیقت پر دبیز پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک کھویا ہوا محل ہے جو تاریخ کے اوراق میں کہیں گم ہو چکا ہے۔ یہ محل کہاں تھا، کس نے اسے بنایا، اس کی دیواروں کے پیچھے کون سے راز دفن تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ محل اچانک کیسے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ کوئی عام عمارت نہیں تھی، اس کے در و دیوار پر وہ نقوش ثبت تھے جنہیں صرف اہل معرفت ہی سمجھ سکتے تھے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ایک روحانی مرکز تھا جہاں اہل دل اور اہل صفا اپنی حقیقت کو پانے کے لیے حاضری دیا کرتے تھے۔ بعض قصے کہتے ہیں کہ یہاں خفیہ دروازے تھے جو ایک ایسی دنیا میں کھلتے تھے جسے عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ محل بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی کرامت تھا جو کسی خاص مقصد کے تحت دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ مگر کیا یہ سب محض کہانیاں ہیں یا پھر حقیقت میں اس پراسرار محل کا کوئی وجود تھا؟ کیا یہ کسی غیبی طاقت کا اثر تھا یا پھر کسی صدیوں پرانے راز کو چھپانے کی کوشش؟ تاریخ کے پرانے اوراق میں جھانکیں تو ہمیں حیران کن اشارے ملتے ہیں مگر کہیں بھی کوئی واضح جواب نہیں ملتا۔ یہی وہ معمہ ہے جو ہمیں آج اس کھوج پر لے جا رہا ہے۔ ہمیں ان روایات، ان نشانیوں اور ان مخفی اشاروں کو تلاش کرنا ہوگا جو ہمیں اس راز کے قریب لے جا سکتے ہیں۔ کیا یہ محل واقعی آج بھی کہیں موجود ہے یا وقت نے اسے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا؟ یہ محض ایک داستان نہیں بلکہ ایک ایسا زندہ راز ہے جو آج بھی عقل و شعور کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہمیں تاریخ، روحانیت اور پراسراریت کی سرحدوں تک لے جائے گا۔ کیا آپ تیار ہیں؟ کہتے ہیں کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو عام انسانوں کی طرح پیدا تو ہوتی ہیں مگر ان کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس اور ہر قدم کسی بڑے راز کا حصہ ہوتا ہے۔ بابا شاہ جمال بھی ان ہستیوں میں سے ایک تھے مگر ان کی کہانی عام درویشوں سے کہیں زیادہ پراسرار، کہیں زیادہ حیرت انگیز اور کہیں زیادہ ناقابل یقین ہے۔ یہ ایک ایسے درویش کی داستان ہے جو وقت کی قید سے آزاد تھا، جو آنے والے وقتوں کی خبریں دیتا تھا، جس کی نگاہ میں وہ راز تھے جو عام آنکھوں سے اوجھل تھے۔ ان کی ذات کے گرد ہمیشہ ایک ایسا حالہ رہا جسے کوئی مکمل طور پر سمجھ نہ سکا۔ وہ بظاہر ایک عام صوفی تھے مگر ان کے وجود میں ایسی روحانی طاقت تھی جو عقل کی حدود سے باہر تھی۔ بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کے ابتدائی حالات پر تاریخ کے صفحات زیادہ روشنی نہیں ڈالتے۔ ان کی پیدائش کے بارے میں مختلف روایات ہیں مگر ایک بات طے ہے کہ وہ ایک ایسے وقت اور مقام پر پیدا ہوئے جب دنیا مادیت کے اندھیروں میں گھری ہوئی تھی مگر ان کی روح روشنی کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بچپن ہی سے ان میں عام بچوں سے الگ خصوصیات تھیں۔ وہ خاموشی سے گھنٹوں آسمان کی طرف دیکھتے رہتے، درختوں کی سرسراہٹ میں چھپے پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کرتے اور یوں محسوس ہوتا جیسے وہ کسی ایسی دنیا کے مسافر ہیں جو عام انسانوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ ان کے والدین انہیں علم دین اور ظاہری علوم سکھانے کے لیے علماء اور صوفیاء کے پاس لے گئے مگر جلد ہی یہ واضح ہو گیا کہ ان کا علم کسی کتاب کا محتاج نہیں۔ وہ ایسی باتیں کرتے جن کا تعلق کسی اور ہی دنیا سے ہوتا۔ وہ ایسے سوالات پوچھتے جو عام ذہنوں کی پہنچ سے باہر تھے۔ جوانی میں ہی بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا سے منہ موڑ لیا۔ وہ شاہی محلوں کو ٹھکرا کر فقیروں کی بستی میں جا بسے۔ انہوں نے دولت اور رتبے کو رد کر کے فقر کی چادر اوڑھ لی اور علم ظاہر کو چھوڑ کر علم باطن کی راہوں پر چل نکلے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے جنگلوں میں چلے کاٹے، سخت ترین ریاضتیں کیں اور ہر وہ آزمائش قبول کی جو انہیں حقیقت کے قریب لے جا سکتی تھی۔ وہ اکثر مہینوں کے لیے غائب ہو جاتے اور جب واپس آتے تو ان کے چہرے پر ایسی روشنی ہوتی جو عام آنکھوں کو خیرہ کر دیتی۔ وہ صوفی نہیں بلکہ ایک راز تھے، ایک بھید تھے، ایک ایسا راز جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی مقام اتنا بلند تھا کہ ان کے پاس آنے والے ہر شخص کو لگتا تھا جیسے وہ ایک عام دنیا سے نکل کر کسی دوسری ہی دنیا میں داخل ہو چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی مجلس میں بیٹھنے والا اگر کسی بیماری میں مبتلا ہوتا تو بغیر کسی دوا کے صحت یاب ہو جاتا۔ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کی آنکھوں میں جھانک کر ان کی پوری زندگی بدل دی۔ بعض روایتوں کے مطابق اگر وہ کسی ویران جگہ پر بیٹھ کر عبادت کرتے تو وہ جگہ خود بخود روشنی میں نہا جاتی۔
लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा हैरान कुन कहानी एक महल की है जो बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह के जिक्र के साथ जुड़ी हुई है। ये महल कहाँ था, किसने उसे बनाया, क्या ये बाबा शाह जमाल की करामत थी या किसी सदियों पुराने राज का हिस्सा? ये वो सवालात हैं जो आज भी जवाब के मुंतज़िर हैं। कहा जाता है कि ये कोई आम महल नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा मुकाम था जहाँ वक्त रुक जाता था, जहाँ माजी, हाल और मुस्तकबिल एक साथ जमा हो जाते थे। कुछ लोग कहते हैं कि इस महल में दाखिल होने वाला शख्स कभी वापस नहीं आया। कुछ का दावा है कि यहाँ के दरो दीवार में ऐसी तहरीरें नक्श थीं जिन्हें दुनिया का कोई भी इंसान नहीं पढ़ सकता। और सबसे हैरान कुन बात यह कि ये महल अचानक गायब हो गया। क्या ये बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह की कोई करामत थी या किसी गैबी ताकत का असर? क्या ये किसी पोशीदा राज का मुहाफिज था जो दुनिया के सामने नहीं आ सकता था? यहाँ से कहानी एक नए मोड़ में दाखिल हो जाती है। अब हम इस महल के बारे में उन तमाम निशानियों और इशारों को तलाश करेंगे जो हमें इस राज के करीब ले जा सकते हैं। क्या आप इस राज को जानने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा राज है जो सदियों से लोगों के जहनों में गूंज रहा है। एक ऐसा महल जिसका वजूद तारीख के औराक में कहीं खो चुका है, मगर कहानियां आज भी इसके साए में सांस लेती हैं। ये महल हकीकत था या एक शराब? क्या ये दुनियावी कवानीन से आज़ाद था या ये बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह की किसी पोशीदा करामत का मजहर था? ये सब सवालात इस महल की कहानी को मजीद पुरअसरार बना देते हैं। कहते हैं बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह का क़याम जहाँ होता था वो जगह एक आम ज़मीन की मानिंद लगती थी, मगर जैसे ही कोई वहाँ पर कदम रखता वो एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो जाता जो आम दुनिया से मुख्तलिफ होती थी। रिवायात में आया है कि उस महल की दीवारें चमकती थीं, मगर किसी कीमती पत्थर या धात से नहीं, बल्कि एक ऐसी रोशनी से जो आम आंखों से नहीं देखी जा सकती थी। ये महल कहाँ से आया था, किसने इसे तामीर किया था, ये कहाँ चला गया? ये सब सवालात आज भी जवाब के मुंतज़िर हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये महल इंसानों की दुनिया में नहीं था, बल्कि एक गैबी मखलूक ने इसे तामीर किया था। कुछ सूफी बुजुर्गों का कहना है कि ये महल बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह की करामत का एक मजहर था जो आम इंसानों की नज़रों से ओझल कर दिया गया था। कहा जाता है कि इस महल में दाखिल होने का रास्ता हर किसी के लिए नहीं था। ये एक ऐसा दरवाज़ा था जो सिर्फ उन लोगों पर खुलता था जिनके दिल में बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत, खुलूस और सच्चाई होती। कुछ दरवेशों का कहना है कि ये दरवाज़ा आम नज़र से दिखाई नहीं देता था, बल्कि सिर्फ उन लोगों को नज़र आता था जो बातनी आंख रखते थे। एक और रिवायत के मुताबिक महल की दीवारों पर कुछ ऐसे निशानात और तहरीरें थीं जिन्हें दुनिया की कोई जुबान नहीं पढ़ सकती थी। वो शायद किसी और जहान का इल्म था या फिर एक ऐसे पैगाम का इल्म था जो सिर्फ अहले राज के लिए था। इस महल के बारे में सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात यह कही जाती है कि यह वक्त की कैद से आज़ाद था। कुछ लोग कहते हैं कि जो भी इस महल में दाखिल होता वो कई साल बाद वापस आता, मगर उसे लगता कि सिर्फ चंद लम्हे ही गुजरे हैं। कुछ का मानना है कि ये महल बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह की इजाज़त के बगैर किसी को कबूल नहीं करता था। महल का अचानक गायब हो जाना हकीकत या फरेब? अब सवाल ये है कि अगर ये महल हकीकत में मौजूद था तो वो कहाँ चला गया? कुछ लोगों का कहना है कि जब बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह ने दुनियावी पर्दा छोड़ा तो ये महल भी उन्हीं के साथ किसी और जहान में चला गया। कुछ कहते हैं कि ये महल आज भी मौजूद है, मगर इसे देखने के लिए ख़ास नज़र चाहिए। कुछ दरवेश आज भी दावा करते हैं कि वो इस महल के आसार जानते हैं, मगर वो जगह आम लोगों के लिए ममनू है। ये महल हकीकत था या कोई बातनी दुनिया का मजहर, ये आज भी एक मुइम्मा है। मगर एक बात तय है कि ये कहानी इतनी ही पुरानी है जितनी कि खुद बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते अक़दस। ये एक ऐसा राज है जो शायद कभी मुकम्मल तौर पर ना खुल सके, मगर जो लोग इसके करीब पहुंचते हैं उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। क्या ये महल आज भी कहीं मौजूद है? अगर हाँ, तो इसे कैसे तलाश किया जा सकता है? अब वीडियो में आगे हम इन तमाम निशानियों का जायजा लेंगे जो हमें इस महल के पोशीदा राजों के करीब ले जा सकती है। क्या आप इस सफ़र पर हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं? रात की तारीकी में जब हर शय सुकून में डूब जाती है तो बाबा शाह जमाल के दरबार पर कुछ ऐसा होता है जो अक्ल की गिरफ्त से बाहर है। कहते हैं कि वो आज भी मौजूद हैं, मगर आम आंख उन्हें नहीं देख सकती। क्या वो किसी और जहान में चले गए या वक्त की कैद से आज़ाद हो गए? ये वो सवालात हैं जो सदियों से लोगों के जहनों में गर्दिश कर रहे हैं। बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह की करामात और रूहानी वाक़यात महज रिवायात नहीं, बल्कि ऐसी हकीकतें हैं जिन्हें लाखों लोगों ने अपनी आंखों से देखा। उनकी जिंदगी का हर पहलू एक सरबस्ता राज है और उनकी शख्सियत एक ऐसा दरवाज़ा जिसके पीछे कई जहान आबाद हैं।
कहते हैं कि एक बार एक मगरूर रईस ने बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह की विलायत पर शक किया। उसने दरबार में आकर कहा, अगर तुम वाकई अल्लाह के वली हो तो जलती हुई आग में बैठ कर दिखाओ। बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा और बगैर कुछ कहे अलाव में कदम रख दिया। शोले आसमान को छूने लगे, लेकिन बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह की चादर का एक गोशा भी न जला। ये कोई फरेब था या हकीकत? क्या वो किसी और जहान से ताकत लेते थे? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आज तक कोई न दे सका। ये भी रिवायत है कि बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह जमीन के फासले मिटा देते थे। अगर किसी दरवेश की महफिल में जाना होता तो अगले ही लम्हे वहाँ मौजूद होते। ना कोई घोड़ा ना कोई सवारी, फिर भी मंजिल पर पहले पहुंच जाते। कई लोगों ने उन्हें एक ही वक्त में दो जगहों पर देखा। ये कैसा इल्म था जो उन्हें वक्त और फासलों से आज़ाद कर चुका था। कहा जाता है कि जो चीज़ या शख्स गुम हो जाता वो बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़र में आ जाता। एक माँ रोती हुई दरबार पर आई। उसका बेटा 3 साल से लापता था। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने खामोशी से आंखें बंद की और फरमाया, तेरा बेटा कल वापस आ जाएगा। अगले दिन वही बच्चा दरबार के दरवाजे पर खड़ा था, मगर वो कह रहा था, मैं तो कहीं गया ही नहीं था। ये कैसे मुमकिन था? ये भी कहा जाता है कि बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर एक गैबी पहरा है। रात के वक्त वहाँ रोशनी के ऐसे हाले देखे गए जो किसी चिराग या मशल से पैदा नहीं हो सकते। कुछ लोग कहते हैं कि दरबार के आसपास कदमों की आवाज़ें आती हैं, लेकिन कोई नज़र नहीं आता। कुछ ज़ायरीन ने वहाँ एक नूरानी वजूद को भी देखा जो आकर बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के गिर्द तवाफ़ करता है और फिर गायब हो जाता है। ये कौन है? क्या ये बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह की रूह है या वो किसी और जहान से वापस आ रहे हैं, वक्त की कैद से आज़ाद? क्या बाबा शाह जमाल आज भी मौजूद हैं? कुछ सूफी दरवेशों का मानना है कि बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह आज भी किसी न किसी शक्ल में इस दुनिया में मौजूद हैं, मगर सिर्फ वही उन्हें देख सकता है जिसे खुद देखने की इजाज़त दें। कई लोग कहते हैं कि वो ख्वाब में आकर रहनुमाई देते हैं। कुछ दरवेशों का कहना है कि वो दरबार में मौजूद होते हैं मगर आम आंख उन्हें देख नहीं सकती। क्या वो किसी ऐसे मुकाम पर हैं जहां वक्त और मौत का कोई वजूद नहीं? ये सवाल आज भी जिंदा है कि क्या बाबा जी शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ आज भी जारी है? क्या वहाँ आज भी कोई मौजज़ा होता है? क्या उनके दरबार पर आज भी कोई नादीदा कुव्वत सरगर्म है? क्या हम आम इंसान इस हकीकत को समझने के काबिल हैं? ये वो सवालात हैं जो सदियों से लोगों के जहनों में गर्दिश कर रहे हैं, मगर उनका जवाब सिर्फ वही पा सकता है जो हकीकत की तलाश में खुद को फना कर दे। क्या आप भी इस राज को जानना चाहते हैं? वीडियो में आगे हम उन अजीबो गरीब वाक़यात को देखेंगे जो दरबार पर आने वाले ज़ायरीन के साथ पेश आए, और उन कहानियों का तज्ज़िया करेंगे जो आज भी लोगों के जहनों में गूंज रही हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसने सदियों तक मौर्रिखीन, दरवेशों और रूहानी शख्सियात को हैरत में डाले रखा। बाबा शाह जमाल का वो पुरअसरार महल जो एक वक्त में शानो शौकत का शाहकार था, अचानक कैसे गायब हो गया? क्या ये किसी कुदरती आफत का नतीजा था या फिर ये किसी ऐसी कुव्वत का खेल था जो इंसानी अक्ल की पहुंच से बाहर है? ये महल महज एक इमारत नहीं था, बल्कि एक ऐसा मुकाम था जहां सूफियों, दरवेशों और जुस्तजू करने वालों को रूहानी फैज़ हासिल होता था। लेकिन फिर अचानक एक दिन ये महल ऐसे गायब हुआ जैसे ज़मीन ने इसे निगल लिया हो। रिवायात के मुताबिक एक रात शदीद तूफान आया, आसमान सुर्ख हो गया और फिर जब सुबह की रोशनी फैली तो महल अपनी जगह पर नहीं था। क्या ज़मीन ने उसे निगल लिया? क्या ये किसी और जहान में मुंतकिल हो गया या फिर ये कोई ऐसा राज था जिसे वक्त ने हमेशा के लिए छुपा लिया? ये वाक़या यूं तो किसी कहानी का हिस्सा लगता है, मगर इस मुकाम पर रहने वाले कई अफराद ने अपनी आंखों से ये मौजज़ा देखा। ये भी कहा जाता है कि बाबा शाह जमाल ने खुद पेशीन गोई की थी कि एक वक्त आएगा जब ये महल दुनिया की नज़रों से ओझल हो जाएगा। कुछ सूफियों का मानना है कि ये महल किसी और जहान में मुंतकिल कर दिया गया। कुछ का कहना है कि ये एक रूहानी इम्तिहान था जिसे सिर्फ खास लोग ही समझ सकते हैं। कई लोग आज भी दावा करते हैं कि मखसूस रातों में इस महल की झलक देखने को मिलती है, मगर अगले ही लम्हे वो फिर गायब हो जाता है। अगरचे महल गायब हो चुका है, लेकिन कुछ पुरअसरार निशानात आज भी उसके वजूद की गवाही देते हैं। कुछ ज़ायरीन का कहना है कि वो मखसूस रातों में वहाँ रोशनी की चमक देखते हैं। कहा जाता है कि जो शख्स खालिस नीयत के साथ इस जगह पर जाता है उसे किसी न किसी शक्ल में महल की मौजूदगी का एहसास हो जाता है। कुछ लोग वहाँ सरगोशियों और दरवाजे खुलने बंद होने की आवाज़ें सुनने का दावा करते हैं। अगर ये महल वाकई गायब हो गया तो फिर ये कहानियाँ क्यों बाकी हैं? आखिर वो लोग कौन हैं जो आज भी उस महल की मौजूदगी की गवाही देते हैं? क्या ये महज एक वहम है या फिर कोई नाकाबिले यकीन हकीकत? क्या महल आज भी किसी पुरअसरार कुव्वत की गिरफ्त में है?
क्या बाबा शाह जमाल के खास दरवेशों को उसका इल्म था? ये मुइम्मा आज भी हल नहीं हो सका, मगर एक बात तय है, ये कहानी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आज भी लोग उस पुरअसरार महल को तलाश करने आते हैं और हर बार उस जगह पर कुछ न कुछ ऐसा होता है जो उन्हें यकीन दिलाता है कि ये महल कहीं न कहीं मौजूद है, मगर आम आंखों से पोशीदा है। क्या हम कभी इस राज से पर्दा उठा सकेंगे या फिर ये हकीकत हमेशा के लिए तारीख के साए में गुम रहेगी? आइए वीडियो में आगे चलते हैं। ये कोई आम कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा राज है जो वक्त की धुंध में लिपटा हुआ है, एक ऐसा मुइम्मा जिसे सदियों ने पर्दे में छुपा रखा है। बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह की करामात, गुमशुदा महल का नाकाबिले यकीन अंजाम और वो पुरअसरार निशानियां जो आज भी इस कहानी की सच्चाई की गवाही देती हैं। ये सब कुछ एक ऐसे जहान की झलक पेश करता है जो आम इंसानी फहम से बालातर है। क्या ये महल वाकई वक्त की गहराइयों में कहीं खो गया या फिर ये किसी रूहानी ताकत के ज़ेरे असर किसी और जहान में मुंतकिल कर दिया गया? क्या बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आज भी कोई ऐसा राज छुपा है जिसे समझने के लिए एक मखसूस रूहानी बसीरत दरकार है? ये सवालात हमें एक ऐसे दरवाजे तक ले आते हैं जिसके पार हकीकत और फसाने के दरमियान एक लकीर मध्यम हो जाती है। हर राज के पीछे एक हकीकत होती है और हर हकीकत के पीछे एक गहरा राज। ये महल सिर्फ एक इमारत नहीं था बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां वक्त, मकान और रूहानियत के कवानीन यकसर मुख्तलिफ थे। शायद इसीलिए ये आज भी तलाश करने वालों को अपनी तरफ खींचता है, मगर हर बार वो हाथ खाली लेकर लौटते हैं। क्या ये महल किसी मखसूस साथ में ही नजर आता है? क्या ये वो जगह थी जहाँ रूहानी कुव्वतों के राज फाश होते थे, या फिर ये एक ऐसा मुकाम था जो सिर्फ बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह जैसे फकीरों की निगाहों के लिए मुख्तस किया था? ये कहानी हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हमारी दुनिया वही है जो हमें नजर आती है या फिर इसके पीछे कोई और हकीकत छुपी है। बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह जैसे फ़कीर हमें सिखाते हैं कि हकीकत वो नहीं जो आंख देखती है, बल्कि वो है जो दिल और रूह महसूस करती है। महल का गुम हो जाना एक ज़ाहिरी वाक़या है, मगर इसके पीछे छुपी हिकमत शायद सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो दुनिया के फ़रेब से आगाह हो चुके हैं। दुनिया एक ख्वाब है जो लम्हा ब लम्हा बदलता रहता है। जो कुछ तुम देखते हो वो एक दिन मिट जाएगा, मगर जो तुम्हारी रूह में उतर जाए वो हमेशा बाकी रहेगा। जो लोग इस गुमशुदा महल की तलाश में निकलते हैं उन्हें शायद खुद अपनी हकीकत का सामना करना पड़ जाता है। ये राज और ये मुइम्मा हमें बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज याद दिलाता है कि जो चीज़ें नज़र आती हैं वो हकीकत नहीं, और जो हकीकत है वो आम आंखों से नज़र नहीं आती। ये कहानी किसी इख्तिताम को नहीं पहुंचती, क्योंकि इसका अंजाम वही तलाश कर सकता है जो वक्त की जंजीरों से आज़ाद होकर देखने की सलाहियत और ताकत हासिल कर रखता है। दास्तान उर्दू आपको ऐसी कहानियों के दरवाजे तक लेकर जाएगा जहां हकीकत और ख्वाब, वक्त और लामहदूदियत, रोशनी और तारीकी आपस में मिल जाते हैं। क्या आप भी इस पुरअसरारियत का हिस्सा बनना चाहते हैं? ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, ये तो अभी आगाज़ है, क्योंकि जहां कहानी ख़त्म होती है वहीं से एक नया दरवाज़ा खुलता है।